Hello friends, today's topic is ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy means pregnancy that is fertilized ovum is implanted and developed outside the uterine cavity. So fertilized ovum is implanted and developed outside the uterine cavity. तो uterine cavity के अगर बाहर होगा तो कहाँ होगा? So just see the structure of uterus. This is the structure of uterus. This is myometrium. ठीक है, this is the fundus of the uterus and here it is the starting of the fallopian tubes. So this fallopian tube is divided into four parts. The part which is inside the uterus is known as interstitial or the intramural end, which is the narrowest part of the tube. Second part is the isthmic part, which is the straight part and it is the second part. Third part is the ampullary part, which is the tortuous part, and fourth is the infundibular or the it is also known as the femoral part. So these are the four parts: interstitial, isthmic, ampullary and infundibular. And most important is this ampullary end, because at this end the fertilization occurs. So during the time of ovulation, this is the ovary. So during ovulation, ova's come from this femoral end. It comes in the ampullary end. During sexual intercourse, the sperms will ascend from this side and will enter in the ampullary end, and at the ampullary end fertilization occurs. And within 48 to 24 to 48 hours, this fertilized ovum will travel into the uterine cavity and develops here. So here there are the cilia which propel this fertilized ovum towards the uterine cavity. So the most common, the site of implantation, if it is a ectopic pregnancy, ectopic means outside the uterus, that is fertilized ovum is not in the uterus but somewhere else. So what are the most common site of implantation? First is extrauterine, that is outside the uterus, and second is uterine. So extrauterine, the most important is tubal. As we know, because at the second part fertilization occur, so 95% of chances of fertilization occurs in tube only, in which ampullary end has 55% incidence. Isthmus, because after traveling the second part is isthmus, तो most of the time क्या होता है, fertilized ovum यहीं रुक जाता है और यहीं डेवलप होने लगता है. सो सेकेंड पार्ट इज द स्टमक, जहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी एंड द इंसिडेंस इज 25%. थर्ड इज इनफंडिबुलर. इनफंडिबुलर की सपोज अगर इस तरफ डायरेक्शन से ना आके सीलियाज ने उसको अपोजिट प्रोपेल कर दिया और वो इनफंडिबुलर एंड की तरफ आ गया. सो थर्ड इज इनफंडिबुलर एंड, दैट इंसिडेंस इज 18%. एंड लास्ट इज इंटरस्टिशियल, कि ट्रैवल करते हुए फर्टिलाइज ओवम आया तो लेकिन वो यहीं रुक गया. So the last part is interstitial, which is 2%. So most common tubal pregnancy is this. So tubular pregnancy, the incidence is 55%, 95%. Out of this, ampullary has the highest incidence, that is 55%. If it is not tubal, then second is ovarian. ये यहाँ से प्रोपेल होके towards ovary ये निकल के बाहर आ जाएगा. So this is ovarian second, and third is abdominal, के सीधे निकल के fertilized ovum यहाँ आ गया abdomen में. So third is abdominal. So extrauterine pregnancy is divided into three types: tubal pregnancy, which is most common; second is ovarian pregnancy; third is abdominal pregnancy. What is uterine pregnancy? Uterine means cervical. कि suppose because of some unknown reason, normally fundus पे रहना चाहिए zygote, but ये shift होके यहाँ आ गया cervix में. This is the part of cervix. So this is known as cervical pregnancy. यहाँ पर fertilized zygote आ जाएगा. सेकेंड एंगुलर एंड द कॉर्नुअल प्रेगनेंसी, किसी एंगल या कॉर्नुआ पे आके फंस जाए बट नॉट टुवर्ड्स द, ये मेन बॉडी जो होती है यहाँ पर ना रह के कहीं एंगल में या कॉर्नुआ पे आ जाए. सो दीज आर द मोस्ट टू टाइप्स, एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी एज वेल एज यूट्राइन प्रेगनेंसी. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स, क्यों एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है? एज यू नो, कॉजेज इज अननोन, बट मोस्ट कॉमन जो हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस किस पेशेंट में ज्यादा हो सकते हैं. So the factors responsible for fertilized ovum to remain in the tube. क्या कारण है कि fertilized ovum ट्यूब में ही रह गया लेकिन वो यूट्रस में नहीं आया? So these are divided into two types. पहले वो factors होते हैं which prevent or delaying the migration of fertilized ovum to the uterine cavity, जो कि fertilized ovum को migrate करने में या तो migrate नहीं होने दे रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर वो चल रहा है तो उसकी स्पीड को कम करके उसको डिले कर रहे हैं. तो delaying or the migration of the fertilized ovum. एंड सेकेंड फैक्टर्स वो होते हैं विच प्रोवाइड्स नाइडेशन. नाइडेशन मीन्स जितनी भी उसको रिक्वायरमेंट चाहिए फॉर द फर्टिलाइज ओवम को डेवलप करने के लिए वो सारे फैक्टर्स उसको ट्यूब के अंदर ही मिल जाए. सो दीज आर नोन एज फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग नाइडेशन इन द ट्यूब. वो फैक्टर्स सारे उसको ट्यूब के अंदर मिल रहे हैं, इसलिए फर्टिलाइज ओवम वहीं के वहीं डेवलप होने लगा. सो फर्स्ट फैक्टर्स प्रिवेंट डिले. किस कारण से डिले हो सकता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज.
एज यू नो सारी लेडीज को, मैक्सिमम लेडीज को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, जिसको ल्यूकोरिया बोलते हैं। वेजाइनल कैविटीज एंड ओपन कैविटी, जो कि ओपन में रहती है स्लम्स एरियाज में, जहाँ पर पैड्स यूज नहीं करते हैं, कॉटन क्लोथ्स यूज करते हैं, अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन होता है। सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और उसके कारण क्या होगा, इन्फेक्शन से होते होते सबसे पहले होता है आपका लॉस ऑफ सीलियाज। सीलिया लॉस हो जाते हैं। सीलिया अगर खराब हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन तो हुआ है, बट वो उसको प्रोपेल नहीं करेंगे, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेल करेंगे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लॉस ऑफ सीलिया। सेकेंड इज, जब भी इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन इज ऑलवेज बाय, हीलिंग इज ऑलवेज बाय फाइब्रोसिस। तो जितनी बार इन्फेक्शन होगा ट्यूब के अंदर, उतनी बार उसकी हीलिंग होगी, बॉडी उसको हील कराएगी, फाइब्रोसिस होगा, जिसके कारण ट्यूब्स का जो था नैरो ल्यूमन, वो नैरो हो जाएगा, मतलब ट्यूब्स और पतली हो जाएंगी, जिसके कारण फर्टिलाइज ओवम को शिफ्ट होने में प्रॉब्लम होगा। थर्ड, माइट भी फाइब्रोसिस होते होते जगह जगह पॉकेट्स बन जाए, अडेशंस हो जाए, जो कि फर्टिलाइज ओवम को आगे ना बढ़ने दे। नेक्स्ट, पेरिटोनियल एडेशंस रिजल्टिंग इन किंकिंग एंड द एंगुलेशन ऑफ द ट्यूब। ये जो बाहर का ये पेरिटोनियम पार्ट है, ये यहाँ पर इन्फेक्शन होते होते यहाँ से एडेशंस बनते चले जाएं, जिसके कारण ट्यूब्स में किंकिंग हो जाए। एंड लास्ट, नेक्स्ट इज, ये सारे फैक्टर्स किसके अंदर आएंगे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कारण, कि इन्फेक्शन होने से सीलियाज लॉस हो सकते हैं, ट्यूबल ल्यूमन नैरो हो सकता है, पॉकेट्स बन सकती हैं, एडेशंस बन सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज iatrogenic। iatrogenic मीन्स फिजिशियन इंड्यूस्ड, जो डॉक्टर के कारण हुआ है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के किया गया है, लेकिन जैसे फर्स्ट इज आईयूसीडी। आईयूसीडी मीन्स इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। दिस इज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एक बच्चे के बाद पेशेंट को सेकंड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, तो हमने आईयूसीडी डाल दिया किसी पेशेंट को। अब आईयूसीडी क्या होता है, दिस इज सपोज दिस इज यूट्रस, यूट्राइन कैविटी, दिस इज सर्विक्स, और आईयूसीडी मीन्स हम यहाँ से एक डिवाइस को ऐसे इंसर्ट कर देते हैं, छोटा सा थ्रेड या वेजाइनल कैविटी में छोड़ देते हैं, सो दैट हम आईयूसीडी को इजीली निकाल पाएं। तो हमने क्या किया कि जो कैविटी थी जहाँ से स्पर्म्स असेंड होके जाते थे, इस कैविटी को हमने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, हमने इसका रास्ता बंद कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस आईयूसीडी। तो ये आईयूसीडी क्या करेगा, आगे फर्दर प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। पेशेंट को जब प्रेगनेंसी चाहिए होगी, इस थ्रेड से हम आईयूसीडी को बाहर निकाल देते हैं। तो क्योंकि आईयूसीडी डाला किसने है, डॉक्टर ने डाला है, बट माइट भी आईयूसीडी फेल हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। तो आईयूसीडी क्योंकि यूट्राइन कैविटी के अंदर डला हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये वाली प्रेगनेंसी ट्यूब में रह जाए, क्योंकि यूट्राइन कैविटी का रास्ता बंद है, तो फर्टिलाइज ओवम ट्यूब के अंदर ना, यूट्रस के अंदर ना पाए। सो iatrogenic कॉज में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आईयूसीडी। सेकंड इज स्टरलाइजेशन ऑपरेशन और द प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन। मेरी ट्यूब्स खराब थी, प्लास्टिक सर्जरी करके उनको ठीक किया गया है, या स्टरलाइजेशन ऑपरेशन, मैंने स्टरलाइजेशन ऑपरेशन मैंने ट्यूबेक्टोमी करा ली, मुझे आगे फर्दर बच्चे नहीं चाहिए थे, मैंने अपनी सर्जरी करा ली, जिसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, मतलब ट्यूब्स को लाइगेट कर दिया, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ ट्यूब को मैंने बांध दिया, जिसके कारण फर्दर बच्चे नहीं हो। बट बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजन अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अभी और बच्चे चाहिए। तो कई बार पेशेंट आते हैं, मैडम मैंने ऑपरेशन करा लिया था, बच्चा नहीं होने का, अब मुझे वो खुलवाना है। खुलवाना है मीन्स हमने क्या किया, ट्यूबेक्टोमी में इस वाले पार्ट को, एम्प्लोरी ग्लैंड को ही हम यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं। दो तरह की होती है, एक होता है कन्वेंशनल टीटी, सीटीटी, कन्वेंशनल ट्यूबेक्टोमी, वो होता है लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी। लेप्रोस्कोपी में मात्र लेप्रोस्कोपी ले जाके एक सिंगल रिंग जो होती है वो ट्यूब्स के अंदर फिक्स कर देते हैं, और कन्वेंशनल में हम ट्यूब को लाइगेट कर देते हैं, दैट मीन्स ट्यूब को बांधते भी हैं प्लस ट्यूब को कट भी कर देते हैं। तो इसके फेल होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। हाँ, एलटीटी फेल हो सकता है, क्योंकि रिंग कभी भी स्लिप होके बाहर भी आ सकती है, और जैसे ही स्लिप होके बाहर आ जाएगी, ट्यूब अगेन ओपन हो जाएगा और आपका प्रेगनेंसी फिर हो जाएगी। तो कई बार बोलते हैं मेरे नसबंदी का ऑपरेशन फेल हो गया है, तो वो एलटीटी ज़्यादा फेल होती है एज कम्पेयर टू सीटीटी। अब सपोज कि पेशेंट बोलेगी नहीं मैडम मुझे बच्चा चाहिए, मुझे मेरा ऑपरेशन खोल दो, तो अगर एलटीटी हुई है, अगर रिंग डाला है, तो रिंग तो मोस्ट कॉमनली रिंग निकाल देते हैं, रिंग निकल गई, ट्यूब्स ओपन हो गई और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीटीटी है, ट्यूब्स लाइगेट करके कट कर देती, अगेन दोनों एंडों को दूरते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, ल्यूमन को पेटेंट करते हैं, लेकिन माइट भी दोनों सर्जरी के बाद जो सीलियास वर्क करते हैं वो सीलियास प्रॉपरली वर्क ना कर पाएँ, इसलिए प्रेगनेंसी अगर होगी भी तो एक्टोपिक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो दिस इज सेकेंड कॉज, स्टरलाइजेशन ऑपरेशन। थर्ड कॉज होता है डेवलपमेंटल डिफेक्ट ऑफ द ट्यूब, दैट मीन्स हो सकता है किसी पेशेंट की कंजेनिटल तरीके से ट्यूब बहुत ज़्यादा लंबी है, इसलिए फर्टिलाइज ओवम माइग्रेट करके अंदर नहीं आ पाया। फोर्थ इज डिस्टॉर्शन ऑफ द ट्यूब मैकेनिकली बाय द फाइब्रॉइड। सपोज कि यहाँ से मुझे ये जैसे ये ट्यूब्स हैं, यहाँ पर मुझे बाहर ओवियन में ये ओवरी है ये, और मुझे ओवरी में बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है,
अगर ये ओवेरियन फाइब्रॉइड इतना बड़ा होगा तो मैकेनिकली ट्यूब्स को पुश करेगा, ट्यूब को पुश करेगा, ट्यूब से फर्टिलाइज जाइगोट प्रॉपर अंदर नहीं आ पाएगा. सो डिस्टॉर्शन ऑफ द ट्यूब मैकेनिकली बाय फाइब्रॉइड. लास्ट इज ट्यूबल स्पाज्म, ट्यूब एकदम ब्लॉक हो जाती है, माइट बी ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंसेस. सो दीज आर द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स जो कि माइग्रेट फर्टिलाइज ओवम को माइग्रेशन से रोकेंगे या फिर उसको डिले करेंगे. सेकेंड फैक्टर्स कि वही चीज़ें जो उसको वहीं की वहीं फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, दैट इज इंक्रीज डेसिडुअल रिएक्शन. डेसिडुआ क्या होता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो यूट्रस की सबसे अंदर की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, उसी को हम लोग डेसिडुआ का नाम दे देते हैं. तो वो डेसिडुआ नॉर्मली यूट्रस के अंदर होता है, लेकिन फॉर समहाउ रीजन यही डेसिडुआ ट्यूब्स के अंदर आ जाए तो फर्टिलाइज ओवम वही डेवलप होने लगेगा. सेकेंड इज ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस अगेन, एंडोमेट्रियोसिस मीन्स एक्टोपिक एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम नॉर्मली यूट्रस के अंदर होती है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अगर एंडोमेट्रियम यूट्रस को छोड़ के बाहर आ जाए, फेलोपियन ट्यूब्स पे आ जाए, ओवरी के ऊपर आ जाए, ब्लैडर वॉल के ऊपर आ जाए, तो उसको बोला जाता है एंडोमेट्रियोसिस. तो अगर यही एंडोमेट्रियम ट्यूब्स के अंदर आ जाएगी तो बिकॉज ऑफ दिस एंडोमेट्रियम फर्टिलाइज ओवम वहीं डेवलप होने लगेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अर्ली रिजम्पशन ऑफ द ट्रोपोब्लास्टिक एक्टिविटी ड्यू टू प्रीमेच्योर डिजेनरेशन ऑफ द जोना पेलिसिडा. जब फर्टिलाइज ओवम होता है तो उसके सबसे आउटर लेयर होती है जोना पेलिसिडा. नॉर्मली 1 या 2 दिन के बाद ये डिजेनरेट होती है, और जब ये डिजेनरेट होती है इसके बाद ये जो फर्टिलाइज जाइगोट था वो यूट्रस की कैविटी से चिपक जाता है. सपोज कि 48 आवर्स से पहले ही, 24 आवर्स से पहले ही अगर जोना पेलिसिडा डिजेनरेट हो जाए तो फर्टिलाइज ओवम ट्यूब के वहीं ट्यूब में ही चिपक जाएगा. सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि नाइडेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ट्यूब्स के अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट द site of implantation of ectopic pregnancy and the etiological factors. Okay, thank you.